presenting Task Technologies. Okay, and today we are having a workshop on data analytics and Python basics. Okay, so I'll introduce little bit about Task Technologies. So we are Nagpur based, and we are IT firm, and we are expertise in CRM and web development, etc. And we are getting a lot of inquiries about internship, so that's why we have started this training program, because the interns coming, they have no knowledge about the technology or whatever the platforms they use. So it's quite difficult for us to provide internship to them, but they are eager and they really want to get internship or internship letter for their career. So that's why we thought we'll start from the scratch, and we'll first train the students and help them to get into the basics, and after that we'll be providing them internship, so that it will be a complete course, so that they get course from us, then after that internship from the IT firm which is based in Nagpur, and then later on we will help them to get placed in some other company wherever they want to move. So this is all a complete uh, session we will be taking today. So we'll start with the first topic, or one of the course, that is data analytics. So I welcome you all on behalf of Task Technologies and Task Education. So this course will be taken by Sahil. Sahil sir is expert in data analytics, and he will give the basics of data analytics to us. So I'll hand over to Sahil sir so that he can continue. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, Good Sahil sir. evening, everyone. Okay, so we are going to start our session on what is data analysis and what is Python basics. So क्या होता है data analysis? क्या होता है Python? Basically, there are so many programming languages. तो Python क्या होता है? Data analysis क्या होता है? Okay, so we'll begin our entire session. Okay, starting with the programming languages. So why do you think that programming languages are important? Okay. Sahil sir, can you please explain from the very beginning what is data and what is data analysis, please? Okay. Okay. So what is data analysis? First of all, we will break into two parts. What is data and what is analysis? तो डेटा क्या होता है? बेसिकली एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड डेटा. हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी अगर एक क्लोथिंग इंडस्ट्री है, या फिर अगर आपका एक क्लोथिंग का एक शॉप है, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, और अगर मैन्युफैक्चरिंग के पास जाने के बाद अगर आप उनको बोलते हो कि सर, वी वांट 1000 टी-शर्ट्स, 1000 शर्ट्स एंड सम ऑफ द पैंट्स, वो आप आपके शॉप पे लाते हो, उसको सेल करते हो. ओके, सेल करने के बाद आप वापस से जब मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, तो आप तो ऐसे ही नहीं जाओगे. तो आप बेसिकली क्या करोगे? पहले आप पूरे डेटा को एनालाइज करोगे. ओके, तो आपने डेटा तो क्रिएट कर लिया कि आपको इतने टी-शर्ट्स लगेंगे, इतने पैंट्स लगेंगे, इतने सो कॉल्ड इन्वेंट्री लगेगी आपकी. तो ये हो गया आपका डेटा. ओके, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो बेसिकली क्या होगा? आप देखोगे कि आपके शॉप पे कौन सी इन्वेंट्री सबसे ज्यादा सेल हो रही. फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आप पैंट का स्टॉक 1000 लाते हो, तो 1000 में से आपका कितना सेल हो रहा. अगर आप शर्ट लाते हो तो शर्ट में से कितना सेल हो रहा. तो हम इस डेटा से इंसाइट निकालते हैं कि आपका टोटल इन्वेंट्री में से सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो स्टॉक कौन सा होता है. सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डेटा एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल, we can take the example of DMart. Everyone is familiar with DMart. What is DMart? It is a mart where all the things are available. Okay, तो basically DMart क्या करता है? यहाँ पे DMart के पास बहुत सी इन्वेंट्री होती है, उसके पास बहुत सा डेटा होता है. वो डेटा को एनालाइज करता है कि उसका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होगा. अगेन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट. आप सभी ने फ्लिपकार्ट तो देखा ही होगा. कभी ना कभी आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ बाय तो किया होगा. चलो, कुछ ना कुछ तो बाय किया ही होगा आपने फ्लिपकार्ट से. ओके, तो फ्लिपकार्ट में डेटा एनालिसिस क्या होता है? सिंपल.
फ्लिपकार्ट के पास बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, बहुत से, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर क्या होता है, जब फ्लिपकार्ट का एक सेल आता है, बिग बिलियन डेज सेल, आप सभी उसका इंतजार करते हो कि मैं ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। तो आप, तो फ्लिपकार्ट को कैसे पता चलता होगा कि इस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा सेल आने वाली है, ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है? तो ये काम रहता है डेटा एनालिस्ट का। वो क्या करता है, प्रायर 1 ईयर का डेटा लेता है, उस डेटा को एनालाइज करता है, रॉ डेटा में से इंफॉर्मेशन लेता है। जब इंफॉर्मेशन लेता है वो उसको पता चल जाता है, वो एक प्रिडिक्शन लगाता है कि ओके, इन दिस ईयर वी हैव सोल्ड दिस मेनी आइटम्स, सो व्हाट विल बी द प्रेडिक्शन, व्हाट विल बी द इनसाइट्स। ओके, सो वो ये सब करता है। ओके, डन। सो वी हैव known that what is data analysis, and now we'll see what is Python. Okay, wait a second. तो हमने तो ये जान लिया कि डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। डेटा इज द इंफॉर्मेशन, एंड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू टेक आउट द इंफॉर्मेशन इनसाइट्स। फ्रॉम रॉ डेटा यू हैव टू टेक आउट इनसाइट्स, दैट इज नोन एज डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस करते कैसे है, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू व्हाट इज डेटा। ओके, is my screen visible to everyone? Yes, sir. Okay, so this is the data. It is the data of cars. Okay, so make is the brand of data like Acura, Audi, BMW, so and so. It is the model of the cars. Okay, then after the models, it is shown that what is the origin. Origins means basically Asia, Europe, and so on. There are types. आपको तो पता ही है कार्स में कितने टाइप होते हैं, एसयूवी, सिडान, स्पोर्ट्स, सो ऑन। यहाँ पे उसकी प्राइस गिवन है, यहाँ पे उसका इनवॉइस गिवन है। तो ये बेसिकली डेटा होता है, यही डेटा है। यहाँ पे तो बस नंबर्स है। सो डेटा एनालिस्ट का काम यही होता है कि वो एक रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाए ताकि वो बिजनेस में यूज हो, राइट? तो ओके, ये डेटा तो है सर, लेकिन इस डेटा का करना क्या है, इसको लोड कैसे करते हैं, हाँ ठीक है, सब देखेंगे। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो डेटा एनालिसिस करने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। देयर आर टन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड सो ऑन। अब आप बोलोगे सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत सारी है, फिर आपने यहाँ पे 2 ही क्यों लिखी है, पाइथन और आर? द रीजन इज दैट हर एक लैंग्वेज का उसके डोमेन के पर्सपेक्टिव में अलग अलग यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, नोड.जेएस पढ़ोगे एंड सो ऑन, राइट? अगर आपको बैकएंड क्रिएट करना है या फिर गेम्स डेवलप करने हैं तो आप मोस्टली सी प्लस प्लस का यूज करोगे। अगर आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, इन सब में जाना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तो पाइथन आनी चाहिए, एक तो आर आनी चाहिए। ओके, तो सर हम कौन सी यूज करेंगे? हम पाइथन यूज करेंगे थ्रू आउट द सेशन। अब आप पूछोगे कि सर पाइथन ही क्यों, आर क्यों नहीं? पाइथन की जो टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा लगेगा कि आप बस एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, एक सिंपल लाइन लिख रहे हो और कोड एग्जीक्यूट होते चले जाएगा। पाइथन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड and it can be read easily. R is so complex, not that much complex, but R doesn't provide tons of libraries. Python में tons of libraries है, तो जो काम होता है वो ज्यादा easy हो जाता है। ओके ग्रेट, तो हम ये बात तो क्लियर हो गई है कि डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और वो लैंग्वेज होगी पाइथन। ओके, उसके बाद ओके, अब सबका फेवरेट टॉपिक, जॉब अपॉर्चुनिटीज। सबको यही लगता है कि भाई कोर्स तो कर लिया, सब कर लिया, इंटर्नशिप भी कर ली, अब जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है? एज यू ऑल नो, डेटा एनालिसिस इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। Every company needs data analysis to grow their business, to take their business to the next level. कोई भी फर्म हो, रिलायंस, मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट, they need so many data analysts because they want to analyze their data and they want to know that which inventory of ours will be in the trend and what
the insights we are getting, the data analyst is only able to give that insights. Okay, तो आप ये भी सोच रहे होगे कि सर ने यहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर भी लिखा है, डेटा इंजीनियर भी लिखा है, विजन इंजीनियर भी लिखा है, तो ये क्यों लिखा है? इसके पीछे एक बहुत रीजन है, एक बहुत बड़ा रीजन है. अगर आपको डेटा साइंस पढ़ना है, अगर आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है या फिर विजन इंजीनियर, तो सबसे पहले आपको डेटा एनालिसिस आना ही चाहिए, मस्ट है. जब तक आप डेटा को एनालाइज नहीं कर पाओगे, जब तक आप डेटा से इंसाइट्स नहीं निकाल पाओगे, तब तक आप मशीन लर्निंग का तो जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे. ओके, जब तक आप डेटा को क्लीन नहीं कर पाते, तब तक आप उसको डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव में लेके जा ही नहीं सकते. सो द डेटा एनालिसिस इज सो इम्पोर्टेंट इन डेटा साइंस और विथ रिस्पेक्ट टू एआई इंजीनियर. तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा डेटा एनालिसिस. Is that point clear to everyone? Hello, is that Yes, sir. okay? Okay, now we will see path to become a data analyst, master a programming language. सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़नी है, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स व्हाट वी विल इंटीग्रेट. Mastering a programming language simply doesn't mean that we will learn the programming language like others do. What others do basically, they will learn a programming language, they will write the code for calculator, they will write the code for palindrome checker and so on. But no, it's not the part. तो आपको करना क्या है? आपको पाइथन इज हेलो सर आवाज नहीं आ रही है. हेलो, am I audible? Yes, you are audible, Yes, sir. ओके ओके ओके, लेट्स बिगिन. तो हम पाइथन इस तरीके से पढ़ेंगे कि उसको लाइव इंप्लीमेंट करना सीखेंगे. जब हम पाइथन पढ़ रहे होंगे हमारे कोर्स में, तो उसको साइड बाय साइड हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे इंटीग्रेट करते चलेंगे. बिकॉज इन द टेक इंडस्ट्री व्हाट इज हैपनिंग टुडे, सबको आता है, सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसको मॉडल के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसको लाइव प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम पाइथन में क्या पढ़ेंगे? बेसिक जो होगा, वेरिएबल, स्ट्रिंग, object, everything we will learn in the Python, and we will take it to the advanced level like concept of oops, inheritance, etc. Then we will learn the tons of libraries that are very important for data analysis. तो आप बोल रहे होगे कि सर आप लाइब्रेरीज बोल रहे हो, तो क्या आप हमें लाइब्रेरीज के टाइप बता पाओगे? Yes, why not? In mastering a programming language, we will learn mostly 5 libraries in deep. That will be pandas. तो पांडास क्या होता है? नाम सुना सुना लग रहा है पांडा, नहीं वो एनिमल नहीं है, पांडास एक लाइब्रेरी है पाइथन की. तो पांडास क्या करता है? मैंने आपको डेटा सेट दिखाया था. फॉर एग्जांपल दिस इज डेटा सेट. ओके, सो दिस इज द डेटा सेट. अभी हम एक्सेल में तो एनालाइज नहीं करेंगे. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस डेटा सेट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे आईडीई पे. ओके, तो आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम कोड करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आपका VS कोड हो गया, जुपिटर हो गया, एनाकोंडा हो गया. ओके, इन सब के बारे में हम बाद में करते हैं. तो ये डेटा सेट को हमें लोड करना पड़ेगा. तो लोड करने के लिए हमें पांडास का सबसे ज्यादा यूज होता है. पांडास इज यूज फॉर द लोडिंग ऑफ डेटा सेट एंड ऑल्सो इट हैज सो मेनी फंक्शंस इन इट. उसके बाद numpy. ओके सर, व्हाट डज numpy डू? numpy is mathematical library. Like if you have to create the arrays, all the mathematics and statistics part will be done by the numpy. Okay, great. Then we will learn matplotlib. Okay, what is matplotlib? Very simple. For example, this is our data set, and if I want to know that which company like Audi, BMW, Acura sells the more car, is it possible to check here? No, I can't check here that which company is top, that how many Audi has how many cars in it. Okay, so we will create the visuals, we will create the graphs. For example, take Acura. This is Acura. Acura is a brand of a car. Okay, Acura is a company. Okay, done, let it be. It is having model. Okay, so Acura is having so many models.
Okay, Acura, you are not familiar with Acura, we will take another example. Are you knowing Toyota? Okay, so in Toyota there are many models, many n number of models. तो अब हमें ये जानना है कि टोयोटा के कौन से मॉडल की कार सबसे ज्यादा सेल होती है, कौन से मॉडल की कार सेल ही नहीं होती। तो अब ये हम डेटा सेट से तो देख नहीं पाएंगे कि वी विल लर्न कि कहाँ है भाई। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। वी विल क्रिएट द विजुअल्स, वी विल क्रिएट द ग्राफ्स। आफ्टर क्रिएटिंग द ग्राफ्स वी विल बी, हमें एक इंसाइट मिल जाएगा कि कौन से कंपनी का कार सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, या फिर कौन से टाइप की कार सबसे ज्यादा सेल हो रही है, लाइक सीडैन, एसयूवी, स्पोर्ट्स वैगन एक्सेट्रा। तो मैटप्लॉटलिब यही काम करता है। ओके, सुमित, आर यू हैविंग अ डाउट? Sumit? Okay. After that, Hello. we will. Hello, Sumit. Yeah. No. No. Yeah, sir. Yes. आवाज हाँ, आवाज आ रही है आपकी। डाउट है आपको कुछ? आपने हैंड रेस किया है? नहीं सर, दोहरा देते। Yes, you can please once again. ओके ओके ओके। मास्टरिंग स्टैटिस्टिक्स, तो ये हो गया लाइब्रेरीज के बारे में। अब हम स्टैट्स में क्या पढ़ेंगे? तो स्टैट्स में क्या पढ़ना है हमें? आपने स्टैट्स तो पढ़ा ही होगा, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। तो स्टैट्स का डेटा एनालिसिस में ऐसा क्या क्या जरूरत है? हमें डेटा का मैक्स निकालना पड़ेगा, कभी डेटा का मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, कभी डेटा की अभी जो ग्राफ रहता है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्राफ को। तो उसमें ही तो स्टैट्स यूज होता है। स्टैट्स मीन लाइक व्हाट इज द 75% ऑफ डेटा, व्हाट डज द 50% ऑफ डेटा वांट्स टू टेल अस। तो ये सब तो स्टैट्स ही होता है। ओके, तो स्टैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, मास्टर द कमांड लाइन टूल्स। ओके, अभी कमांड लाइन टूल्स क्या होते हैं सर? नाम बहुत फैंसी है, लेकिन इसके पीछे का जो आंसर है वो बहुत ईजी है। हमने जो अभी देखा है कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, लाइक पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, स्काइपी, टन्स ऑफ लाइब्रेरीज। तो हर एक लाइब्रेरी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पांडा में शेप, डॉट रिसाइज, डॉट कॉलम, ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं। नमपाई में भी बहुत से फंक्शन होते हैं, लाइक मैटप्लॉटलिब में बार प्लॉट, काउट प्लॉट, histogram, histograph. These are all the master command line tools of programming language. Okay, mastering SQL. Okay, ये तो सभी आपने पढ़ा ही होगा आपके स्कूल में भी, या फिर आपके इंजीनियरिंग में। ओके, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। ओके, एसक्यूएल की क्या जरूरत पड़े हमें यहाँ पे? अगर आप किसी कंपनी में प्लेस होते हो एज ए डेटा एनालिस्ट, तो वो आपको डेटा डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको सर्वर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको सर्वर से डेटा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको एसक्यूएल की क्वेरी आनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल, टेक दिस डेटा सेट। ओके, दिस इज द डेटा सेट। ओके, आई गॉट इट डायरेक्टली, बट सपोज इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, then how will I get this data? Every company is having their own servers, so we have to take the data from that servers, and also we have to create the databases. So for that, SQL is very important. Okay, after that, master the data. What does this means, master the data? Okay, data is everything. You can think that money is not valuable, but data is valuable in today's generation because data is everything. आप सोच नहीं सकते हो कि हम डेटा से क्या क्या कर सकते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम एक डेटा से, एक कंपनी का। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि डेटा कितना ज्यादा यूजफुल हो गया है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, देन मास्टरिंग द डेटा में ऐसा क्या होता है? हम डेटा को मास्टर करते हैं? नो नो, बेसिकली अगर मैं आपको एक रैंडमली डेटा दे देता हूँ, मैंने रैंडमली किसी एक स्टूडेंट को ये डेटा दे दिया कि ओके, यू हैव टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस ऑन दिस डेटा, तो वो स्टूडेंट डायरेक्टली इस डेटा पे डेटा एनालिसिस कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लिख के ले लो, वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसको पहले वो डेटा को समझना पड़ेगा कि डेटा कहना क्या चाह रहा है, वो डेटा किस चीज का है, वो डेटा क्या कह रहा है। एक स्टोरी टेलिंग होती है। लाइक यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेक, तो मेक मतलब क्या होता है?
ओके, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ओके, तो फिर मुझे समझ में आ रहा है कि नो, इट्स अ कार डेटा सेट। यहाँ पे मॉडल दिया है, ओके, तो कार में इतने मॉडल्स रहते हैं। देन टाइप एसयूवी, सीडान, स्पोर्ट्स, ओके। अब ये डेटा सेट मुझे दिख रहा है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे पैरामीटर्स तो गिवन ही नहीं होते हैं। ओके, नाउ पैरामीटर्स मीन्स व्हाट, लाइक मेक, मॉडल, टाइप, ओरिजिन, ड्राइव ट्रेन, दिस ऑल आर द पैरामीटर्स। In many of the data sets, parameters are not defined. तो हमें पहले डेटा को स्टडी करना पड़ेगा कि डेटा के पैरामीटर्स क्या होते हैं। लाइक आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि एमपीजी सिटी क्या होता है, एमपीजी हाईवे क्या होता है, या फिर इनवॉइस क्या होता है। तो हमें इन टर्मिनोलॉजीज को पहले समझना पड़ेगा कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। ओके, उसके बाद हम डेटा का क्या करेंगे, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करेंगे। स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के बाद डेटा को क्लीन करेंगे। अभी आप बोल रहे होगे कि सर डेटा को क्लीन क्यों करना पड़ता है? डेटा क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा में कुछ ऐसा भी रहता है, कुछ जब हमारे पास रॉ डेटा आता है तो डेटा में मिस्टेक्स भी होती है। डेटा में मिस्टेक तो होती है, कभी कभी कुछ कॉलम्स मिस आउट हो जाते हैं, तो उस डेटा को क्लीन करना सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, देन डेटा एनालिसिस। ओके, then we will learn what is data analysis in our course. तो what is data analysis, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि डेटा को एनालाइज करना, एक रॉ डेटा से इंसाइट्स जनरेट करना और इस इंसाइट्स के यूज करके उस कंपनी को ग्रो करना। ओके, डन। देन वी विल लर्न डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। अभी डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स क्या होता है? पावर बीआई, टैब्ल्यू। तो पावर बीआई और टैब्ल्यू क्या करते हैं? बेसिकली एक डैशबोर्ड सपोर्ट करते हैं। हम जुपिटर में डैशबोर्ड्स नहीं बना पाएंगे। अभी डैशबोर्ड क्या होता है, ये बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा और ये इतना इजी लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी इतना डेवलप हो जाएगा कि आप बोलोगे कि नहीं, मुझे बनना है तो बस डेटा एनालिस्ट ही बनना है। ओके, तो पावर बीआई और टैब्ल्यू क्या होता है? ओके, एनीबॉडी इज हैविंग डाउट? No, sir. ओके, No, sir. okay, okay, we were in Power BI and Tableau. So Power BI and Tableau are the visualization tools. यहाँ पे आप बहुत से ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो, बहुत से चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हो, लाइक पाई चार्ट, लाइक हिस्टोग्राम, any other graphs. There are many graphs present. वन बेसिक क्वेश्चन, Okay, sir. अगर हमको डेटा एनालिस्ट बनना है तो हमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी आना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें सीखनी होगी? आप थोड़ा बेसिक बता पाएंगे प्लीज? Yes, sir. Okay. तो अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि डेटा एनालिस्ट काम क्या करता है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उसके बाद हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? पाइथन और आर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब वो करने के बाद हमें स्टैट्स क्यों पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर हमें डेटा सेट का 75% कैलकुलेट करना है, 50% कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स आना ही चाहिए। उसके बाद मास्टर द कमांड लाइन टूल्स, जो भी टूल्स होते हैं लाइक पाइथन, लाइक पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, यहाँ के सभी टूल्स आपको आने चाहिए। आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए। उसके बाद आपको डेटा को मास्टर्स द डेटा करना पड़ेगा, मतलब डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। वेब स्क्रैपिंग से डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा विजुअलाइजेशन के टूल सीखने पड़ेंगे। Like it is a technology. Power BI and Tableau are the technology. You have to learn that. After that, we have to see what is debugging. आप सभी ने debugging तो सुना ही होगा. Learn how to debug errors in your data set. ये एक बहुत एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं आपको। ये बहुत एक डीप कंसेप्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोर्स में कवर होगा क्या? हाँ सर, ये पूरी चीजें कोर्स में कवर होगी। ओके, ये कोर्स में जितना भी आपको दिखाया जा रहा है ये सभी कोर्स में इंक्लूड होगा। लाइक मास्टर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर पी भी नहीं आता होगा तभी आप मास्टर बन के ही जाओगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और डेटा एनालिस्ट के मास्टर भी बन के जाओगे। ओके, सो व्हाट इज डिबगिंग? आपने डेटा सेट को लिया, डेटा सेट को एनालाइज किया, रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन जनरेट की। ओके, लेकिन क्या वो सच में इंफॉर्मेशन थी?
आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या वो सच में इंफॉर्मेशन थी? क्या वो सच में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी? क्योंकि आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ तो कोई भी पैरामीटर से ड्रॉ हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग दिस डेटा सेट. वेट अ सेकंड. ओके, अगर आप मेक और टाइप का अगर ग्राफ बनाते हो तो ओके, ग्राफ तो बन जाएगा, लेकिन डज इट मेक एनी सेंस? ग्राफ्स का भी सेंस बनना चाहिए. ग्राफ्स का भी सेंस बनना चाहिए कि एक्चुअल में ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ग्राफ दिखाना क्या चाहता है हमको. अगर आप बोलोगे कि सर मैं ओरिजिन और प्राइस की बात करूंगा, प्राइस का ग्राफ बनाऊंगा, तो क्या ये इंफॉर्मेशन होगी? हाँ, बिल्कुल होगी. क्योंकि एशिया में अगर एक कार की प्राइस इतनी है तो वो यूरोप में चेंज हो सकती है. वो वो किसी और, मतलब किसी और यूएसए में चेंज हो सकती है. लाइक हियर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स लाइक एशिया, यूरोप, यूएसए, सो ऑन. उसके बाद क्या इंजन साइज हर एक ओरिजिन के हिसाब से बदल सकता है? नो. इंजन साइज तो वही रहेगा ना. इंजन साइज क्यों बदलेगा ओरिजिन के हिसाब से? अगर आप ओरिजिन और इंजन साइज का अगर ग्राफ बनाते हो तो वो क्या सच में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? नहीं. तो यहाँ पे हमें उसको डिबग करना पड़ेगा. यहाँ पे हमें एरर्स को डिबग करना पड़ेगा. ओके, देन ओके, अगर आप बोल रहे हो कि सर हम कैसे सीख पाएंगे कि विच ग्राफ इज सुटेबल, कौन सा लॉजिक लगाना है, तो थ्रू आउट द कोर्स यू विल बी ग्रेट इन योर लॉजिक. हम आपका लॉजिक कुछ इस तरीके से बिल्ड करके देंगे कि अगर आपको कुछ अगर एक डेटा सेट देते हो तो हम आप विद इन 2 days उस पर कोई मॉडल क्रिएट कर पाओगे. डन. उसके बाद आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या होता है? ओके, वंस यू बिकम द डेटा एनालिस्ट, आपने पूरे जो आपको डेटा दिया था उस डेटा को आपने विजुअलाइज कर लिया, उसके विजुअलाइजेशंस बना लिए, सब कुछ कर लिया. अब क्या करना है? अब आप उस डेटा को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा आपके क्लाइंट को. फॉर एग्जाम्पल, इफ मैं वर्क कर रहा हूँ रिलायंस में, मुझे उन्होंने डेटा सेट दिया, मैंने उस डेटा सेट को क्लीन किया, उसको व्रैंगल किया, उसको विजुअलाइज किया, उसको डिबग किया, उसको हर एक टर्मिनोलॉजीज वर्क की मैंने उस पर. अब मैं वो डायरेक्टली कोड तो उस स्टाफ को हैंडल नहीं करूंगा कि ये ले लो, ये है ऐसा कोड और ये इन्फॉर्मेशन आई है. तो आपको एक पीपीटी बनानी पड़ेगी या फिर एनी अदर थिंग. आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ओके सर, इन 2010 our revenue was this, in 2012 our revenue was this, so in 2015 we can cross this revenue. For example, if G, for example, if Tata is, for example, Reliance is selling one product, name it as X. If Reliance is selling his X product in 2010, if Reliance is selling his X product in 2015, then अगर उसको प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए कि नहीं 2020 में, तो ये सब चीजें हमें उनको बतानी पड़ेगी. ओके, दिस वाज टोटली ऑल अबाउट पार्ट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट. ओके, अभी आते हैं सबसे बेस्ट टॉपिक पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो डेटा एनालिस्ट का एवरेज एलपीए कितना होता है? इट वेरीज फ्रॉम 4 एलपीए टू 7 एलपीए. मशीन लर्निंग इंजीनियर का एलपीए कितना होता है? 8 टू 12 एलपीए. विजन इंजीनियर का कितना होता है सैलरी? 8 टू 9 एलपीए. एआई इंजीनियर का 12 टू मोर एलपीए. और अगर आपको 3 टू 4 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस होता है डेटा एनालिसिस में, so it can cross up to 12 to 15 LPA. Okay, so there is great opportunity in data analysis. ठीक है सर, आपने तो ओके ओके, क्या my slide is open? Is okay? Yes. ओके, ग्रेट. इट वाज अ नाइस क्वेश्चन. डेटा एनालिसिस का कोर्स करने के बाद आपको डेटा एनालिस्ट का ही जॉब मिलेगी. अगर आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब होना तो आपको मशीन लर्निंग का कोर्स करना पड़ेगा. डेटा इंजीनियरिंग की अगर आपको जॉब होना तो आपको कोर्स करना पड़ेगा. लेकिन आप ये जॉब कब ले पाओगे? जब आपको डेटा एनालिस्ट अच्छे से आता हो. अगर आपको डेटा एनालिसिस ही नहीं आता तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर कभी बन ही नहीं पाओगे, आप डेटा इंजीनियर कभी बन ही नहीं पाओगे. To become machine learning engineer, data engineer, vision engineer, first step is that you have to learn data analysis, and also
You have to work as a data analyst in a company for about 2 to 3 years. Then only you will be able to get a job as a machine learning engineer. Okay, do you got your doubt? Okay, great. Okay, अब सब तो जान लिया हमने. सर आप कुछ करके दिखा सकते हो? डेटा से हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं. ओके, सो दिस इज जुपिटर नोटबुक. आपको जुपिटर नोटबुक पता नहीं होगा तो मैं बता दूं जुपिटर नोटबुक क्या होता है. ये एक आईडीई होती है, एनाकोंडा का पैकेज होता है जुपिटर. ओके, तो हम जो भी कोड करेंगे वो जुपिटर में करेंगे. अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर मुझे जुपिटर यूज नहीं करना, तो आप कोलैब भी यूज कर सकते हो. कोलैब इज पावर्ड बाय गूगल. आई विल शो यू. इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ओके, ग्रेट. Yes, sir. तो आप कोलैब में भी कोड कर पाओगे और आप जुपिटर में भी कोड कर पाओगे. नथिंग इज डिफरेंट. सो वी विल स्टार्ट विद आवर कोड. ओके, तो आप जब आपका जुपिटर इंस्टॉल करोगे, यस, see, Jupyter Notebook is available online also, or else you can download it through Anaconda package. Download link will be shared in the group. You can download it from there. Okay, great. Okay, so this is Jupyter. We will create a new file, Python 3 file. Okay, done. So this is our interface. This is file, edit, view, everything. What we will do here now? Now tell me, I told you one thing, that we have to import this data set to this IDE. So आप कैसे करोगे उसको? तो इसीलिए तो हम pandas का यूज करते हैं. Okay, so let's start with importing some of the libraries. अब libraries कैसे import करते हैं? बहुत बेसिक सा कोड होता है. आपको क्या लिखना है? import pandas as pd. and it is run successfully. उसके बाद अगर हमें वो डेटा सेट को अपलोड करना है तो एक कोड होता है. कोड क्या होता है वो भी जान लेते हैं. pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv डबल इनवर्टेड कॉमा data sets. Then we will go to cars. Yeah, done. This data set is imported, right? Is my screen visible to everyone? Okay, done. अब आप बोल रहे होगे कि सर आपने तो बोला था कि स्टैट्स भी यूज कर सकते हैं हम इसमें. मतलब स्टैट्स तो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो स्टैट्स कैसे यूज करते हैं? मैं आपको एक स्टैट्स का कोड दिखाता हूँ. बहुत अच्छा कोड है वो. One second. Let me store it in a variable. Done. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंजन साइज का काउंट कितना है, इंजन साइज का मीन कितना है, इंजन साइज का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इंजन साइज का 25% डेटा क्या कह रहा है, इंजन साइज का 50% डेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमें. तो ये होता है स्टैट्स. डन. फिर हमने क्या देखा था? कोई बता सकता है हमें? हमने क्या देखा था? विजुअलाइजेशन देखा था शायद, राइट? ओके, तो मैं विजुअलाइजेशन का आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर हम सीबॉन को इंपोर्ट करते हैं, सीबॉन इज विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी. नाउ वी विल इंपोर्ट सीबॉन. ओके, डन. तो अब हमें क्या करना है? अभी हमें एक सिंपल सा कोड लिखना है. ओके, अब मैं एसबी डॉट अगर काउंट प्लॉट लिख के डायरेक्टली अगर रन कर देता हूँ तो यस, मेरा ग्राफ तो बन गया, लेकिन ग्राफ में कुछ आया नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन तो आई नहीं है ग्राफ में. तो अब हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना है, कि टाइप्स कैसे कैसे. टाइप्स में एसयूवी ज्यादा है या सीडान ज्यादा है. अब हमें ये देखना है. तो हम
ये भी देख पाएंगे। इसको हमें कॉपी करना है टाइप को, यहाँ पे df डॉट ब्रेक। आप अगर एक साल भी ले लो तो आप ये नहीं जान पाओगे कि ये टाइप में एसयूवी सबसे ज्यादा है, सीडैन सबसे ज्यादा है, या फिर वैगन सबसे ज्यादा है, लेकिन विद इन 1 सेकंड आपको पता चल जाएगा कि एसयूवी टोटल ज्यादा है क्या नहीं है। सीडैन बहुत ज्यादा है, स्पोर्ट्स बहुत कम है, वैगन की जो टोटल कार्स है वो कम है, ट्रक कम है, एसयूवी कम है, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, राइट। ओके, देन wait a second. Now we will see some of the basic functionalities of pandas. df dot shape, then it is showing us the shape of the data set. Now we will see what the size functions give. df dot size, wait a second, size will be not callable because we have not imported the numpy here. Okay, so if you want to again know that what does this data set want to tell us, you can know it. मैंने आपको ये भी बोला था कि डेटा का क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, तो डेटा को क्लीन करना इंपॉर्टेंट क्यों है हम ये जानेंगे। अगर आपको ये देखना है कि डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज कितनी है तो आप वो कैसे जानोगे। देखो डेटा सेट तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट 100 कॉलम्स को देखता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि इसमें से मिसिंग डेटा सेट कौन सा है तो हम वो भी जान सकेंगे। df डॉट इज नल डॉट सम, it is showing error, 1 second. So, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेक मॉडल टाइप यहाँ पे सभी कॉलम्स डिस्प्ले हो चुके हैं, राइट। जो भी कॉलम्स हमें यहाँ पे दिखे थे मेक मॉडल जो भी हमने पैरामीटर्स बोला था तो यहाँ पे हमें वो दिख चुका है df डॉट इजनल डॉट सम। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं मेक में कोई वैल्यू मिसिंग है क्या, नहीं है। मॉडल में कुछ वैल्यू मिसिंग है क्या, नहीं है। टाइप में कुछ वैल्यू मिसिंग है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे मतलब एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डेटा। अभी आपको एक रफ इंफॉर्मेशन तो मिली गई होगी कि डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया जो कि पाइथन की लाइब्रेरीज है। उसके बाद हमने हमारे डेटा सेट को लोड किया। ओके, तो आप बोल रहे होगे सर ये डेटा सेट का कोड क्या है, हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैथ्स में कुछ कांस्टेंट होते हैं वहाँ वैसे ही ये इंपोर्टिंग का एक कांस्टेंट है। बस यहाँ पे जो आपकी डेटा की पाथ रहेगी वो चेंज होगी। इट इज द सिंटैक्स लाइक df is equals to pd dot read csv is a syntax, और ये आपकी फाइल की पाथ हो चुकी है। डन। उसके बाद okay, somebody is having question. Okay मैम। हाँ ओके ग्रेट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो आप डायरेक्टली पांडा सीबॉर्ड नंपाई को इंपोर्ट तो कर पाओगे, लेकिन आपको बेसिक अगर टर्मिनोलॉजी करनी है, स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना है तो आपको पाइथन सबसे पहले पढ़ना ही पड़ेगा। और डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, वो हम 1 महीने में पूरा मास्टर कर लेंगे पाइथन कि df क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में चीजें कैसे स्टोर होती है, स्ट्रिंग क्या होता है, लाइक मेनी अदर लाइक इंट हो गया, कैरेक्टर हो गए, फ्लोट हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, वो सब कैसे रहता है, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, वो सब सीखेंगे हम बेसिक पाइथन से स्टार्ट करेंगे और एडवांस पाइथन भी हम पढ़ेंगे पूरा इस कोर्स में। उसके बाद हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे पाइथन की लाइक पांडा, सीबॉर्न, नंपाई, मैटप्लॉट, मेनी ऑफ द लाइब्रेरीज। हम बहुत सारी लाइब्रेरीज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे उसको रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ। ओके, तो ये हो गया डेटा एनालिसिस का पार्ट। तो आपके मन में अभी एक डाउट होगा
कि सर ये तो हो गया, कोर्स तो आपने पढ़ा दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? होगा ना सबके मन में ये डाउट। तो उसके बाद हमारा इंटर्नशिप सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इंटर्नशिप सेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ टास्क असाइन करूंगा मैं, आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, लाइक आपको 2 to 3 डेटा सेट आपको दिए जाएंगे, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि ये सर्वर है, आपको इस सर्वर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उस डेटा को लेना है, उस डेटा को लेने के बाद आपको डेटा पे डेटा एनालिसिस का मॉडल परफॉर्म करना है। उस डेटा एनालिसिस के मॉडल को बनने के बाद आपको उसको उसकी स्टोरी टेलिंग बतानी पड़ेगी कि वो एक्चुअल में डेटा सेट कहना क्या चाह रहा है, उसमें से आपने उसकी इंफॉर्मेशन कौन सी निकाली है। और डोंट वरी, ये सभी चीजें हम एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे। ये तो बहुत डेटा इंपोर्ट करना, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया। हम पूरी चीजें इतनी स्क्रैच से पढ़ेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, ग्रेट। इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट? Okay, now we are having the doubt session. Anybody is having any doubt? They can ask to me. Yes, Sumit, you were having any doubt? You raised the hand. No, sir. Okay. Okay. The total duration of the course will be 3 months, along with the internship. Fee structure is very simple. The fee of the complete course is 12,000 for 3 months, along with the internship. और बस हम कोर्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हम कोर्स के साथ और क्या इंटीग्रेट करेंगे? सभी को लगता है कि हमारी सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमें बोलता आना चाहिए, तो हमारे पास सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपका लिंक्डइन कैसे ग्रो किया जाता है, आप लिंक्डइन को कैसे ग्रो कर सकते हो, ये उस पे भी आपको एक मास्टर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। आप वेरियस एआई टेक्नोलॉजीज को यूज करके डेटा एनालिसिस का मॉडल कैसे बना पाते हो, कैसे मोर टर्मिनोलॉजीज को ऐड करके आपके मॉडल को एनहांस कर पाओगे, ये सभी चीजें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। Okay. So we have came to end of this workshop. Thank you. साहिल सर, क्या 3 मंथ के कोर्स के बाद में जॉब हमको मिल सकती है क्या स्टूडेंट्स को? हाँ, we will provide placement assistant also. We will tell you, we will also prepare you for the interview sessions, like data analysis के इंटरव्यू कैसे होते हैं, डेटा एनालिसिस में कौन सी टर्मिनोलॉजीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो सभी चीजों में हम उनको ट्रेन करा के देंगे। और आपको इतना ट्रेन करेंगे कि अगर आप कोई इंटरव्यू फेस करते हो तो आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे, और आप प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है ये भी असिस्ट किया जाएगा? हाँ सर, वो भी असिस्ट किया जाएगा। लाइक अगर विप्रो में कुछ ओपनिंग्स होती है तो आपको वहां भी असिस्ट किया जाएगा। ओके। एंड मेनी अदर। और सर, ये डेटा एनालिटिक्स में डेटा स्क्रैपिंग भी सिखाते हैं क्या? हाँ सर, डेटा स्क्रैपिंग भी हम सीखेंगे। ओके, फाइन, थैंक यू। थैंक यू। Okay, so I think the session is over. So next session will be of Python. That will be tomorrow. So we will be uploading that on the community group. Thank you so much, Sahil sir. Thank you all for joining. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Okay. If someone wants have any doubt, so they can directly contact the Task Technologies number, or take out the admin's number and just message them. Thank you.